is now ready to start, and we have very good speaker, CA Umesh Sharma ji, and our session chairman, CA Sushil Goyal ji. I request to CA Kavinder Chaudhary to escort them to our to Daesh, please. Can you sit down, please? We are ready to start the session. Our today's speaker is CA Umesh Sharma ji. Umesh Sharma ji is partner in RB Sharma and Company. His education BCom, FCA, DSA, and his achievement is 42 rank in All India CA Foundation exam 1996 and diploma in Information System Audit conducted by ICAI. He is elected as Central Council member for 2022-25. Elected Regional Council member of WIRC for the year 2016 and 2019. He is author of Karniti. Karniti is a popular text article series based in Krishna and Arjun conversation. The series is highly popular on CA Club India and Text Group website. He is author of book published on introduction of GST law in simple way in the Marathi language by hands of former CM of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. Now request to CA Vishnu Vasia ji. CA Vishnu Vasia ji, please come and give bouquet to Umesh Sharma ji. Thank you, sir. Our session, now the session chairman, our own CA Sushil Goyal ji. As you all know, CA Sushil Kumar Goyal ji, BCom Honors, LLB, FCA, DSA, is a partner in PK Mitra and Company. He is commerce graduate from Tinsukia College of Dibrugarh University. He is law graduate from West Bengal State University. Currently, he is practicing in Kolkata, is a city of joy, in the field of service tax and GST and service tax. Presently, he is serving in third term as a member of Central Council of ICAI. He has served number of positions, includes Chairman of GST, Indirect Tax Committee, Chairman, Board of Study Operation, Vice Chairman, Board of Study Academy, and more. He is also served as a chairman 2011 and 12 of EIRC for the period of 2011 and 12. Requested to Anshul Bhavania ji to give flower bouquet to Sushil ji, please. Now requested to session chairman sahab, please start the proceeding. Thank you. Good afternoon, friends. The learned speaker, CA Umesh Sharma, Central Council member from Aurangabad, Vice Chairman to my GST committee. A younger brother, I should call him, that will be better. Regarding GST, if I say something, I can say
GST which is given fresh life to CA profession. How many of you agree to this? It is not so that some changes has not taken place in the indirect tax. Service tax was introduced, but chartered accountant not went for the practice of service tax. Then VAT was introduced in 2005. That time also we have not captured this opportunity. But in 2017, Institute walked like anything. They organized almost 3,000 seminars, and even government recognized. Prime Minister himself written letter to a President ICI, recognized this, that the ICI has supported Government of India in implementation of GST with all ways of means. But as a chairman of GST Committee of Institute of Chartered Accountant, I personally now feel that whatever we have learned in 2017, we think that was enough. We feel now we require GST2 to be learned. Umesh will confirm it that almost 75% of the GST law has been changed over this past 6 years. And today's topic, which is keeping in mind past, present and future of GST, I think Umesh will guide us. But presently I am trying to understand the past of GST only. It will take time to reach the present, and future nobody can say anything. But my friends, the compliance practice of GST is one part, that you are filing GST returns or guiding your client to issue invoices. Now time has come that we should move our practice toward the litigations, how to handle the notices, how to handle the demands, and how to go for appeal. This time is now arrived, and we chartered accountant must grab this opportunity. And regarding Umesh Bhai, it is introduced, he is introduced as Kar Niti Janamdata. Definitely, if you have heard him on the so many YouTube videos, you will appreciate how he simplified the GST provisions and how he presented the GST law in a simple language. So, I will get another opportunity to share my thoughts. Now, I am straightway inviting Umesh Bhai for take the today's topic. Over to Umesh Sharma. Round of applause. Okay. गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला विज़िट है कलकत्ता को, और जितनी मेरी सीए की प्रैक्टिस की उम्र है उतने आपका एसोसिएशन की उम्र है, तो आपका तजुर्बा मेरे से ज़्यादा है और मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर आके कुछ नॉलेज शेयरिंग का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कि मैं आज बड़ा रिलैक्स हूँ, भले ही ये मेरा पहला मौका है, उसका कारण है मेरे चेयरमैन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी सुशील गोयल जी। व्हेन ही इज़ हियर आई एम रिलैक्स, आई एम द वाइस चेयरमैन। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमारे चेयरमैन सर हमको संभाल लेते हैं, एंड ही इज़ अ बिग ब्रदर टू मी एंड ही इज़ अ मास्टर इन जीएसटी एंड द सब्जेक्ट इज़ कॉम्प्लेक्स, बट व्हेन वी हैव अ चेयरमैन लाइक सुशील गोयल सर वी कैन प्रीटी रिलैक्स। और दूसरा, आज मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे जो गुरु गिरीश आहूजा जी, उनके साथ में मंच साझा करने का मुझे आज मौका मिला। तो ये भी एक भगवान की बड़ी लीला है कि जिनको देख के हम आगे बढ़े, आज उनके साथ में हमको
आज मंच के ऊपर कुछ ज्ञान की बातें करने का मौका मिल रहा है। और साथ साथ में जो पास्ट प्रेसिडेंट देवाशीष मित्रा सर और सुबोध अग्रवाल जी को हमने सवेरे सुना, फिर वाइस प्रेसिडेंट सर रंजीत अग्रवाल जी के साथ में हमने जो समय बिताया, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी ना तो हिंदी अच्छी है, ना तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, ना मुझे बांग्ला आती है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी भावनाओं को समझो, मेरी भाषा पे मत जाओ। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हर एक को अपने अपने हिसाब से ये सब्जेक्ट समझ गया, हर एक ने अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस की है। शुरुआत में तो 3 लॉ चल रहे थे, एक जो गवर्नमेंट ने डाला, पब्लिश किया, दूसरा जो हर एक को अपने को खुद को समझा, और तीसरा जो जीएसटीएन अभी भी समझ रहा है कि बिकॉज द लिटिगेशन इज नाउ बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द लॉ, बिकॉज द लॉ प्रपोजेस एंड टेक्नोलॉजी डिस्पोजेस। आप जीएसटी में देख रहे हो कि लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, बट टेक्नोलॉजी के कारण से वो हो नहीं पा रही है। तो आगे का जो भविष्य है वो इसी तरीके से चलने वाला है। तो ये जो मुझे समय दिया गया है 45 मिनट्स लगभग, तो इसमें हम हंसते खेलते एक इनकम आईटीसी की प्रैक्टिस के ऊपर हम यानी आईटीसी लिटिगेशन के ऊपर ध्यान देंगे। मैं हर बार हंसते खेलते ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि अपने ज़िंदगी में दूसरों का टेंशन लेना ये प्रैक्टिस का पहला सिद्धांत है। क्लाइंट जब भी अपने यहाँ आता है तो साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, चर्चा करके निकल जाएगा। जैसे ही अपने दरवाजे के बाहर जाएगा, कब हम उससे अगर बात करेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लेना है, तो तुरंत बताएगा ये लो, वो लो, ऐसा लो। जैसे ही फीस की बात आएगी, साहब बहुत परेशानी है। तो हमारा एक प्रैक्टिस में दूसरों का टेंशन लेने का ही बहुत बड़ा एक ये रहता है। बट आप सब लोग वो छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं, ये सेशन सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका समय हंसता खेलता बीते, ये मैं कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। क्योंकि अब ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर हो गया है टैक्स का कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द टैक्स रेट्स, सो दे कैन नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू। पहले ऐसा था जीएसटी के पहले कि कोई भी गवर्नमेंट चाहती थी कि रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स रेट चेंज करके आउटवर्ड साइड की कलेक्शन बढ़ा लेते थे। अब ये हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके टैक्स रेट डिसाइड करते हैं। टैक्स रेट जीएसटी में फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो पा सकते, तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट is now focusing how to increase revenue by concentrating on the ITC compliances। और हमारा जो टैक्स पेयर है उसका भी ध्यान मैक्सिमम सेल साइड पे रहता है। he will always prepare correct invoice, he will recover the money from the debtors, but many times he may not focus on the ITC compliances। और वो हमारी एज अ प्रैक्टिसिंग सीए सबसे बड़ी जवाबदारी हो जाती है। तो जीएसटी में कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हमको ध्यान में रखना है, तो वो है आईटीसी रिलेटेड। और ये जो आज का टॉपिक है आईटीसी का, इसके अंदर जब हम देखेंगे, ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो जीएसटी का सेशन है और टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं है तो कैसा चलेगा। क्योंकि जीएसटी के रिटर्न भरते वक्त, ट्रांस क्रेडिट लेते वक्त हमने टेक्नोलॉजी के इश्यूज देखे ही है। ओके, सो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस विद द आईटीसी कि ये सीमलेस रहेगा, बट धीरे 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 इसको लिटिगेशन के तरफ लेके चले गए। पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के यहाँ कोई ना कोई आईटीसी की नोटिस तो जरूर आई होगी, कोई ना कोई टैक्स पेयर के मामले में आई होगी। 16-17 हो, 17-18 हो, 17-18, 18-19, 19-20 हो, या अभी का 22-23 चल रहा हो, कहीं ना कहीं हमारे पास में हर एक तरीके का लिटिगेशन है। पुराने सालों का भी है, करंट ईयर का भी है, और आगे क्या आ रहा है उसके ऊपर भी हमको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस। ये क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज दिस? साइकिलिस्ट है और
ये हमारा पास था। पहले सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, वैट में कुछ प्रमाण पे हम हमारा रिटर्न भर देते थे, हम हमारा आईटीसी क्लेम कर लेते थे, सेनवैट क्लेम कर लेते थे, वैट क्लेम कर लेते, मजे से काम चलता था। तो दिस वाज द पोजीशन अर्लियर कि वो टैक्स पेयर अपने अपने हिसाब से बड़े मजे से वो उसका काम करता था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? कौन कौन? सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक बंदा सीजीएसटी वाला है, एक बंदा एसजीएसटी वाला है, और सप्लायर एंड रेसिपिएंट की ये साइकिल है। दैट इज द करेक्ट। दिस इज द जीएसटी लॉ। जो साइकिल है वो जीएसटी लॉ है, और इधर सप्लायर है, उधर रेसिपिएंट है। तो अगर ये दोनों प्रॉपरली चलेंगे तो आईटीसी में लिटिगेशन कम, और अगर कहीं पे भी गड़बड़ी हुई साहब तो क्या होगा? भले ही किसी का एक का दोष नहीं है, बट दूसरा वाला पैडल नहीं मार रहा है तो क्या होगा? तो दिस इज द प्रेजेंट, ये अभी का जीएसटी लॉ है। नाउ वी कम डाउन टू द फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर। व्हाट इज दिस? अब साइकिल पे कितने लोग बैठ गए? 3 लोग, क्योंकि अब सप्लायर और रेसिपिएंट तक ये बात नहीं रही। अब ये जो हमने जिससे माल लिया है सप्लायर से, वो सप्लायर भी क्या कर रहा है, उसने किससे माल लिया है, ये भी आगे फ्यूचर में अपने को ध्यान में रखना। यहाँ तक ये चीजें जा रही है। अब अगर इसको मैं अपने जीवन से जोड़ूं तो मैं पहले बड़ा खुश था, शादी के पहले आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। फिर बाद में शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में अगर बीवी नाराज है तो मैं खुश रह सकता हूं क्या? तो सप्लायर और रेसिपिएंट का तो वैसा ही हुआ है। दे आर मैरिड फॉर क्लेमिंग ऑफ आईटीसी बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। अब यहां तक तो ठीक है। अब इसकी कहानी आगे क्या होगी, क्या नए सेक्शंस आए हैं, वो भी हम देखेंगे कि ये जोड़ी का आगे क्या होगा। और फिर अब हम देखते हैं कि ये पोजीशन पे भी आगे है कि कहीं पे ना कहीं ये दोनों भिड़ जाते हैं, और किसका दोष है ये समझ में नहीं आता कि आईटीसी क्यों डिनाई हुआ। तो दोनों का दोष है, सप्लायर का या रेसिपिएंट का, या किसी एक का दोष है, इसके ऊपर आगे लिटिगेशन चल रहा है। तो हमारे पास दोनों तरीके के लोग हैं। हमारे क्लाइंट्स के अंदर सप्लायर्स भी है और हमारे क्लाइंट्स में रेसिपिएंट भी है। तो हमको प्रैक्टिस को अगर और बेहतर बनाना है जीएसटी में, तो कैसे हमको दोनों साइड का ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम देखेंगे। सो आवर एजेंडा स्टार्ट विथ फर्स्ट इज द सेक्शंस, बिकॉज दीज आर द मेन फॉर जीएसटी। इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, रूल्स जो आईटीसी के आए हैं उसमें क्या लिटिगेशंस के पॉइंट्स है। देन एडवांस रूलिंग्स भी कुछ आ जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग है आईटीसी की, वो भी हम देखेंगे। फिर आते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट, और देन कम दी स्क्रूटिनी पैरामीटर्स कि हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो इसको कैसे देखता है जीएसटी को। तो ये ऐसा अपना सफ़र है। इसको मैं थोड़ा सा एक एक सेक्शंस लेके जाऊंगा, और कहीं पे अगर इशू है तो हम क्वेश्चन आंसर्स में ले लेंगे, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक sections and the related litigation towards that sections। तो इसमें जब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने केसेस अभी तक हो गई आईटीसी के मुद्दे के ऊपर। अगर आप देखोगे तो शुरुआती ट्रांस क्रेडिट से हुई, यानी जन्म से ही झगड़ा चालू हो गया कि आपको हम आईटीसी देंगे, सर्विस टैक्स का देंगे, सेनवैट उसमें का एक्साइज का देंगे, वैट का देंगे। तो लगभग 467 केसेस हाई कोर्ट्स में चले गई थी। टेक्नोलॉजी का इश्यूज था, बाद में फिर रिसेंटली अक्टूबर के अंदर जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, फिर वापस 22 के अंदर ये विंडो खोली गई। तो ट्रांस 1 का झगड़ा अभी तक चलता रहा अक्टूबर 2022 से, यानी शुरुआत ही अपनी वहां से हुई और वो अभी तक 22 तक चलता रहा। कई केसेस में अभी भी असेसिंग ऑफिसर जो अभी ट्रांस 1 फाइल किए हैं रिवाइज, या पहली बार किन्होंने फाइल किया होगा, उनके भी अभी भी असेसमेंट्स चल रही है, वेरिफिकेशन चल रहा है।
फिर सेक्शन 16 के ऊपर हाई कोर्ट के 133 के लगभग केसेस चले गई, सुप्रीम कोर्ट की 2 केसेस। ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी ये एक ऐसा शस्त्र है जो वो ऑफिसर चाहे तो अपने पास जो आईटीसी पड़ा हुआ है उसको ब्लॉक कर देता है, भले ही फिर वो उसका रीजनेबल बिलीफ सही हो या ना हो। फिर बाद में 17(5) के रिलेटेड भी आए हैं, सफारी रिट्रीट, ब्लॉक क्रेडिट, इसके ऊपर भी कुछ जजमेंट्स और लिटिगेशन है, और फेक आईटीसी। तो लास्ट इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है। हमको झगड़ा वहाँ करना है कि जहाँ मेरी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है पर मुझे आईटीसी का प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा पूरा केसेस है। तो ये इसमें कुछ पास्ट केसेस भी है, कुछ प्रेजेंट केसेस है जो हाई कोर्ट्स में अभी भी चालू है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चैलेंज हो चुकी है कई केसेस में, और आगे भी चैलेंज कहाँ कहाँ हो सकती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फर्स्ट विद सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये बेसिक सेक्शन है, और कई बार ये कहा गया है कि जिंदगी में 16वां साल खतरे का साल रहता है। तो ये सेक्शन 16 ही जीएसटी का मेन सेक्शन है आईटीसी के अंदर, और यहीं से सारा अपने को आगे का पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसमें कुछ खासियतें हैं वो आपको बता दूं। साइड में आर लिखा हुआ है ऊपर, तो ये हम यहाँ बाइफरकेट कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रेसिपिएंट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सप्लायर। तो रेसिपिएंट ये बंदा है जो आईटीसी ले रहा है, तो उसका क्या ड्यूटी है, ये सेक्शन किसको मेजर ये ड्यूटी बाउंड करता है, तो उसके लिए हमने आर लिख दिया। अगर यहां पर वो रेसिपिएंट कोई गलती करेगा तो आईटीसी के इश्यूज आएंगे, बट अगर यहां पर कोई सप्लायर ओरिएंटेड कंप्लायंस है तो फिर इसका लिटिगेशन में हमको क्या असर होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 16(1), ये सेक्शन 16(1) बेसिक सेक्शन है एलिजिबिलिटी का, जहां पर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है आईटीसी क्लेमिंग की, और यहां पर दिया है कि फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो बिजनेस के लिए चाहिए। चलो हमारा लिटिगेशन उसके ऊपर नहीं है, सबको समझ गया है कि बिजनेस के लिए ही आईटीसी मिलेगा या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। बट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। अब नाउ हाउ द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड? द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक रिटर्न फाइल नहीं होगा, 3B फाइल होगा नहीं, वो अमाउंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो वो आईटीसी का हमारे को क्लेम आगे नहीं मिलेगा। सो द फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड रिफ्लेक्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क। कई बार हमारे पास में ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बुक्स के अंदर आईटीसी पड़ा हुआ है, सर ये बुक्स में आईटीसी है बट अब मैं इसको कैसे क्लेम करूं, तो वो 3B में दिख ही नहीं रहा है। तो 3B में दिख नहीं रहा है तो आगे क्लेम डिपार्टमेंट देगा नहीं, भले ही बुक्स में पड़े रहने दो। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और इसमें लिटिगेशंस के लिए या इसमें चेंजेस के लिए अभी तक तो कोई चेंज नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो 2017 से लेके 22-23 तक ये सेक्शन वैसे ही चलता आया। तो दिस इज अ fundamental section, no change in these sections and we have to comply. So this is a recipient based compliance section. Then comes the next, वो है section 16(2). यहाँ पर दिया है कि no registered person can claim ITC, मतलब रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है। तो जो भी रेसिपिएंट है उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसको आईटीसी मिलेगा। बट अपवाद क्या है? अब अगर कोई बंदा टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन लेता है, 40 लाख क्रॉस होने के बाद में रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आईटीसी उसको मिलेगा। यानी वो रजिस्टर्ड नहीं भी था, 1 साल पुराने वो इनवॉइसेस पे आईटीसी क्लेम कर सकता है जिसका टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन है, इवन दो ही वाज नॉट रजिस्टर्ड,
बट ही कैन क्लेम आईटीसी ऑफ दैट पीरियड। तो सेक्शन 18 के अंदर इसको थोड़ा सा छूट दी गई है, बट एवरीबडी अदरवाइज देन दैट दे मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब इसके ऊपर क्या इशू हुआ था, तो इसके ऊपर एक वेस्ट बंगाल का अपना ही स्टेट का एक एआर आया था, और ये एआर स्टॉर्म कम्युनिकेशन का था, और इसमें ये दिया गया था कि जो रजिस्टर्ड नहीं है अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कुछ केसेस शुरुआत में हमारे क्लाइंट्स के ऐसी भी हुई थी, बड़े बड़े वो होटल्स में रुकते हैं, कहीं कहीं पे उनके एम्प्लॉयज घूमते हैं। अब उसने दिल्ली में स्टे कर लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो सर्विसेज रिसीव हो गई, तो दिल्ली का इनवॉइस इशू हो गया, और वो इधर रजिस्टर्ड है, तो उसका सीजीएसटी एजीएसटी का क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, ये एक इशू हो रहा था। तो वहाँ पर ये क्लियर हो गया कि भाई आप वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो, तो वहाँ का आईटीसी इधर मिल नहीं सकता। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस लेना जरूरी है। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16(2)(a। दोस्तों ये सेक्शन ये कहता है कि देयर शुड बी इन पोजेशन। पोजेशन में क्या चाहिए, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, ये हमारे पोजेशन में चाहिए। बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते चलते अब पोजेशन ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो गए हैं। ऑफिसर्स को कई बार हम प्रिंट आउट निकाल के भी इनवॉइसेस दे देते हैं, बट स्टिल इट इज देयर दैट द पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस शुड बी देयर। अब यहां पर इशू ये हो रहा है कि अगर किसी ने गलत टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, मेरे पास तो आ गया, मेरे पोजेशन में है, तो मुझे आईटीसी डिनाई करोगे क्या? दैट इज द इशू हियर। नाउ इट्स अ रेसिपिएंट बेस्ड कंप्लायंस, बट हु इशूज द टैक्स इनवॉइस? सप्लायर देता है। अगर सप्लायर गलती करेगा तो रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिटिगेशन हियर, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि टैक्स इनवॉइस चाहिए। अब टैक्स इनवॉइस अगर सामने वाले ने गलत किया, वेरी गुड एग्जांपल, आपके पास में कोई ऐसी केस आई है कि किसी का टर्नओवर क्रॉस हो गया, उसको ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, बट आपको उसने मैन्युअल फिजिकल इनवॉइस दिया है। आई ये केसेस आपके पास हुई है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ई इनवॉइसिंग की साइट में लॉगिन करने के लिए भी कई बार टेक्निकल इश्यूज आए हैं, तो वो बिजनेस तो बंद नहीं करेगा, वो अपना टैक्स इनवॉइस नॉर्मल इशू कर देता है। जब वो लॉगिन के पूरे क्रेडेंशियल सब आ जाएंगे, तब वो ई इनवॉइस करेगा। अब लॉ ये कहता है कि सप्लायर ने तो ई इनवॉइस ही इशू करना चाहिए, बट ही हैज इशूड फिजिकल इनवॉइस। अब उसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो यहां पर अगर कोई केस आगे आएगी, लिटिगेशन आएगा, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि एज अ रेसिपिएंट मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, सही है गलत है, सप्लायर को आप पकड़िए, मेरा आईटीसी मत डिनाई करिए। सो दैट शुड बी आवर स्टैंड हियर, और देयर इज नो चेंज इन दिस, बट द इश्यूज आर देयर बिकॉज फ्यू केसेस वी हैव सीन कि ई इनवॉइस इशू करना चाहिए था, उसके बदले में फिजिकल इनवॉइस दिया है, और ऑफिसर ने नोटिसेस भी दी है सामने वाले को। महाराष्ट्र में ऐसी एक केस आई भी है, अब उसका लिटिगेशन हम देख रहे हैं कि उसने रेसिपिएंट को दे दिया है कि भैया ये इसने ई इनवॉइस नहीं इशू किया, आपके पोजीशन में जो टैक्स इनवॉइस है उसका आईटीसी हम नहीं देंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू लुक इनटू फ्यूचर। नाउ स्टार्ट द लिटिगेशंस। अब यहां पर देखो एस आ गया। एस आ गया मतलब क्या? अब आईटीसी तो रेसिपिएंट क्लेम कर रहा है, बट ये जो वर्डिंग आई है 16(2)(a), 16(2)(a) के अंदर ये दिया गया है कि जो भी क्लॉज ए के अंदर आईटीसी है, वो जो भी डिटेल दिया गया है उसके अंदर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, ये फर्निश करना चाहिए सप्लायर ने, यानी उसने जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? सप्लायर की। और आगे क्या दिया है कि सच डिटेल्स हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट। नाउ हु विल कम्युनिकेट टू द रेसिपिएंट? इट्स द जीएसटीएन नेटवर्क, इट्स द डिपार्टमेंट, इट्स द गवर्नमेंट, दे विल कम्युनिकेट। अब यहां पर रेसिपिएंट का क्या काम है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेसिपिएंट? रेसिपिएंट यहां क्या कर सकता है?
सप्लायर ने वन फाइल नहीं किया, सप्लायर ने गलत वन फाइल किया, उसने B2C में डाल दिया, B2B में डालना चाहिए था, मल्टीपल इश्यूज आर देयर। तो उसके गलती के कारण मेरा आईटीसी मना होगा क्या? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर कि जब ये सप्लायर के ऊपर जवाबदारी आपने डाली है तो मेरा आईटीसी आप कैसे मना कर सकते हो? और यहीं से लिटिगेशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि जवाबदारी सप्लायर पे और आईटीसी क्लेम कर रहा है रेसिपिएंट, पहले तो ये था नहीं 17-18 में, 18-19 में नहीं था, 19-20 में नहीं था, 20-21 में नहीं था, 1 जनवरी 22 से ये आना शुरू हो गया। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन। बट व्हाट इज रियली हैपनिंग? एक्चुअल में क्या हो रहा है? आपको 17-18, 18-19 की भी नोटिस आई होगी इसी पॉइंट के ऊपर कि आपके 2A में नहीं दिख रहा है, आपके अक्टूबर 19 के बाद में 2A आ गया था, बट उसके पहले 17-18 में भी आया है। आई है क्या किसी के पास? कैन यहां पर आई है 17-18 का? अब वो था भी नहीं सेक्शन, पर उसके ऊपर वो असेसिंग ऑफिसर स्टैंड ले रहा है और आईटीसी डिनाई कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ लिटिगेशन शुड बी अवॉइडेड बाय द ऑफिसर्स, बट दे आर प्लेइंग विद द लॉ। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये सेक्शन का जन्म कब से हुआ? 1 जनवरी 2022 से। अब इसका लिटिगेशन आगे चलेगा। अब लिटिगेशन आगे चलेगा तो इसमें क्या हमारे रेसिपिएंट को सही में सजा मिलेगी? क्योंकि उसके GSTR 2B में दिख नहीं रहा है, क्योंकि सामने वाला वन फाइल नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है फाइल, क्योंकि ये सप्लायर ने वन फाइल करने के बाद में ही ये मुझे कम्युनिकेट होगा और उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे को डिबेट करना जरूरी है। और इस मुद्दे के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट का एक जजमेंट है जहां पर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है कि अगर GSTR 1 सप्लायर फाइल नहीं कर पा रहा है या गलती है तो उसको गलती सुधारने का मौका दो। इट्स अ रेवेन्यू न्यूट्रल मैटर। अब हमको ये कहा गया है कि आप 1 साल पुराना GSTR 1 अमेंड नहीं कर पाएंगे, 2 साल पुराना GSTR 1 आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो सप्लायर को रिस्ट्रिक्शन डाल दिया तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आईटीसी कैसे मिलेगा? तो ये हमको दोनों साइड से देखना जरूरी है, क्योंकि हमको क्लाइंट को बचाना भी है कि भले ही तेरे 2A 2B में नहीं दिख रहा है बट तेरे को आईटीसी मिलेगा। फिर वो हम छानबीन करेंगे कि सप्लायर का कोई प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू गाइड दैट पर्सन ऑल्सो कि भाई तेरे को आईटीसी मिलेगा भले ही सप्लायर का प्रॉब्लम है। अब सप्लायर को भी कैसे सपोर्ट देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है। अच्छा है कि मिस्टेक्स अगर है 1 में तो ये अलाउ करो, और रेक्टिफिकेशन 18-19 के इस साल भी उन्होंने अलाउड करी, यानी 22 के अंदर ये जजमेंट आया, बट 18-9 के GSTR 1 अमेंड। तो यहाँ पे ये चीजें आ रही है कि हमको अमेंडमेंट इन GSTR 1 शुड बी अलाउड, जिससे ये रिफ्लेक्ट होगा तो 16(2) का कंप्लायंस होगा और आईटीसी मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम 16(2)B। ये एक ऐसा सेक्शन है जो 1 फरवरी 2019 के पहले और 1 फरवरी 2019 के बाद इसमें थोड़ा चेंज आया। अब ये इसमें क्या चेंज आया? तो सर्विसेज अगर हम थर्ड पार्टी के बोलने के ऊपर भी देंगे तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ये पहले गुड्स ही थे, अब इसके अंदर सर्विसेज दे दी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई इशू आने वाला है। नाउ वी कम डाउन टू सेक्शन 16(2)BA। अब ये 2BA, अब इसमें एक हमारी ऐसी हंसते खेलते बात हो रही थी कि अगर CA के स्टूडेंट्स को अगर परेशान करना है, फेल करना है, तो ये ऐसे सेक्शंस हम पैदा कर लेते 16(2)BA AA, यानी वो ध्यान में रखते रखते ही परेशानी हो जाती है। गिरीश आहूजा सर रहते हैं तो फटाफट ध्यान रह जाता है उनको, हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अब ये सेक्शन में 2BA आ गया। अब ये BA क्या सेक्शन है? ये नया सेक्शन आया है कि जो डिटेल्स आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के है, पहले क्या था सेक्शन 16(2) के अंदर जो टैक्स इनवॉइस है, जो डेबिट नोट है, वो कम्युनिकेट होगी आपको,
बट अब ये क्या है, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। यानी दोस्तों अब क्या हुआ, सेक्शन 16 के हिसाब से आईटीसी तो मिल गया आपको, बट 38 के अंदर उसका रिस्ट्रिक्शन कोई है क्या, वो भी देखिए। तो ये फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन है, क्योंकि सेक्शन 38 का जन्म हुआ है अभी 1 अक्टूबर 2022। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 तक हम सेक्शन 16 के अंदर ही खेलते रहे। अब आगे भविष्य में हमको ये भी देखना जरूरी है कि सेक्शन 38 के अंदर क्या आने वाला है, क्योंकि अब ये आ गया है बीए। और सेक्शन 38 जब हम जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग। गवर्नमेंट तो रेसिपिएंट को असेसिंग ऑफिसर बनाने के पीछे लगी है कि सारा काम तू ही करना भाई, तू आईटीसी ले रहा है ना, तो पूरा डिपार्टमेंट तू ही चला, कि सप्लायर रिटर्न भर रहा है कि नहीं, पैसे भर रहा है कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये तू ही देख। तो ऐसी आगे भविष्य के अंदर ये आने वाली चीजें हैं जो हमको देखनी है। सो वी विल डिस्कस मोर व्हेन सेक्शन 38 कम्स। नाउ कम सेक्शन 16(2)(c। ये अक्टूबर 22 के पहले ऐसा था कि एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी सप्लायर ने ये जो पैसा है जिसका हम आईटीसी ले रहे हैं ये पे कर दिया है गवर्नमेंट को, और अब ये कंप्लायंस है सप्लायर का, और जवाबदारी किसके ऊपर डाल दी, रेसिपिएंट। तो जहां जहां सप्लायर बेस कंप्लायंस है और आईटीसी रेसिपिएंट बेस है, उस सेक्शन में लिटिगेशन आनी ही है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हम फाइट करेंगे कि आई एम अ जेन्यून इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट पर्सन, माय आईटीसी शुड नॉट बी डिनाइड बिकॉज ऑफ द एरर्स, ओमिशंस और मिस्टेक्स ऑफ द सप्लायर। तो ये भी एक झगड़े की जड़ होने वाली है आगे, और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत झगड़ा शुरू हो गया है। अब यहाँ पर सेक्शन 43 का रेफरेंस निकाल कर सेक्शन 41 का रेफरेंस इन्होंने लगा दिया है, वो 1 अक्टूबर 2022 से, क्योंकि सेक्शन 41 के अंदर सप्लायर अगर पैसे नहीं भरता है तो क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, उसका ये नया सेक्शन आ गया है, सेक्शन 41। तो यहां पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो सेक्शन 16(2)(c है, ये सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है कि टैक्स पेमेंट सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं कैसे देखूं, व्हाट इज द मशीनरी अवेलेबल टू मी। आज हम किसी का भी जीएसटीएन नंबर साइट पे डाल के देख ले तो उसने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है वो दिख जाता है, बट मैं उसको कैसे कंपेल करूं कि आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी जजमेंट्स के हम वेट कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट्स के अंदर भी टाइकून सप्लायर्स की केस ऑलरेडी जा चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी चैलेंज हो चुकी है कि हाउ यू कैन compel a recipient to check whether tax is paid by the supplier and you deny ITC to the recipient। तो ये एक बहुत बड़ा अभी हमको जजमेंट का वेट करना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी है, एमपी हाई कोर्ट के अंदर भी जा चुका है, सेक्शन 16(2)(c की वैलिडिटी चैलेंज हो चुकी है, किमिंस टेक्नोलॉजी, वी हैव टू वेट फॉर दैट। और ये सारा हमको बहुत एक इम्पॉर्टेंट आगे का रास्ता बताएगा व्हेन द जजमेंट कम्स ऑफ ऑन सेक्शन 16(2)(c के सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा तो मुझे आईटीसी मना कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ सपोर्ट यहां से हमको जजमेंट से मिल सकते हैं। नाउ वी कम डाउन टू सेक्शन 16(2)(b। यहां पर रेसिपिएंट पे जवाबदारी है कि ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब यहां पर सेक्शन 39 के हिसाब से रिटर्न फाइल करना है। सेक्शन 39 के हिसाब से 3B इज द रिटर्न, उसके हिसाब से मुझे फाइल करना है। यहां पर ड्यू डेट वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ 3B फाइल करना है। अब यहां पर जब हम इस सेक्शन को रीड करेंगे 16(4) के साथ, तब इसका झगड़ा हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द लिटिगेटिव पॉइंट इन दिस। हियर सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट आई शुड फाइल 3B to claim ITC, finish. That is my responsibility on the recipient.
अब इशू ये है कि सप्लायर अगर नहीं फाइल करता है तो क्या, वो भी हमको आगे देखना पड़ेगा। कोई चेंज नहीं है ये सेक्शन में, जैसा पहले चल रहा था अभी भी ये आगे चल रहा है। सो इट्स अ बेसिक कंप्लायंस। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट, ये सेक्शन 16(2) के अंदर का है। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि 180 दिन में हमने पेमेंट करना चाहिए एज अ रेसिपिएंट सप्लायर को, नहीं तो आईटीसी रिवर्स करो। अब मेरे को फ्रैंकली बताइए, हम कितने लोग इसको कंप्लाई कर रहे हैं? साहब कम से कम अपने सीए के अपनी खुद के फीस के बारे में तो करो। हम सामने वाले का रिटर्न भर रहे हैं, उसका आईटीसी कैलकुलेट करके ये कर रहे हैं, उसमें अपना भी बिल है, उसने 6 महीने के ऊपर पेमेंट नहीं किया है, तो हम ही उसको निकाल के दे कि भाई मेरा फीस तूने दिया नहीं है, इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। कम से कम वो तो पैसे आ जाएंगे अपने को। तो दिए के नीचे अंधेरा तो मत रखो, 180 दिन का अपने लिए तो फायदा कर लो। बहुत जन नहीं करते, बट हमारे ऑफिस में हम करते। हमारे ऑफिस में जब भी रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस होती है तो वी चेक कि भैया अपना लेजर चेक कर, उसके बुक्स में देख, अपने इसमें देख कौन सा 180 दिन क्रॉस हो रहा है, आईटीसी रिवर्स करने लगा, तो हमारी फीस की थोड़ी बहुत तो भी रिकवरी फास्ट होगी, अगली बारी से और ध्यान रखेगा। अब तो नए सेक्शन भी आ गए इनकम टैक्स में एमएसएमई के, तो सीए ने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेने चाहिए आगे, उसका भी फायदा होगा हमको कि पेमेंट जल्दी आएंगे। और हमारे पास में इनकम टैक्स रिटर्न आने वाले हैं, डिसअलाउंस आने वाले हैं नॉन पेमेंट के, तो अपनी फीस का डिसअलाउंस डालेंगे तो अगली बार सुधर जाएगा वो। तो इस सेक्शन का हमने फायदा लेना चाहिए, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस विल टेक, बट आई एम टेकिंग इट। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट। अब हो सकता है कि मेरी फीस 6 महीना लेट आ रही होंगी, आपकी जल्दी आ रही होंगी, तो आपको कभी नॉन डिसअलाउंस आईटीसी रिवर्सल का मुद्दा ही नहीं आया होगा कलकत्ता में। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट 17-18 से लेके 22-23 तक। ये एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 16(3) कि आपने आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन ना ले, डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी ना ले। तो ये कई बार हो जाता है कि आईटीसी लेना अगर कोई भूल जाता है, कैपिटल असेट्स है, तो बेटर टू टेक डेप्रिसिएशन एंड गो अहेड, कहीं ना कहीं तो उसको बेनिफिट मिल ही जाएगा। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट, और ये झगड़े की जड़ है सेक्शन 16(4). यहां पर रेसिपिएंट के ऊपर जवाबदारी डाल दी है कि कोई भी आईटीसी रह गया पिछले साल का तो आप 30 सितंबर तक ले लीजिए। अब ये इसमें चेंज आया है 1 अक्टूबर 2022 से कि इसको नवंबर तक कर दिया, 30 नवंबर तक आप ले सकते हो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? 30 सितंबर पहले था, उसको बढ़ा के अब 30 नवंबर कर दिया। उसका लॉजिक अगर देखना है तो आगे जब रूल में हम जाएंगे सेक्शन रूल 37 में, तो अपने को ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द लॉजिक, बट व्हाट इज द हैपनिंग एंड व्हाट इज द इशू इन दिस सेक्शन। अगर हम ये सेक्शन को गौर से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यहां पर दिया गया है shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note। हमारे पास में 3 डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं आईटीसी के लिए। वन इज टैक्स इनवॉइस, अनदर इज डेबिट नोट, एंड व्हाट इज थर्ड? एनी डॉक्यूमेंट शोइंग टैक्स पेमेंट, जैसे कि एयर टिकट है, बस टिकट है। चलो जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट हम मुद्दे पे आएंगे कि इनवॉइस एंड डेबिट नोट, ये 2 शब्द डाल दिए और एनी अदर डॉक्यूमेंट उड़ा दिया है या नहीं है। मैं एक बहुत नए डिस्कशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं कि मैंने 1 साल के अंदर आईटीसी ले लिया पिछले साल में, या मेरा छूट गया, तो मैं नेक्स्ट सितंबर तक ले सकता हूं वो इनवॉइस और वो डेबिट नोट के रिलेटेड। अब ये रेसिपिएंट के ऊपर डाली हुई जवाबदारी है। अब इसमें से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ये हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत झगड़े का प्रॉब्लम, ये झगड़े की एक बहुत बड़ा ये सेक्शन है। रिटर्न किसने फाइल करना चाहिए, सितंबर के पहले किसने बताना चाहिए आईटीसी,
रेसिपिएंट ने, बट नोटिसेस काय की आई है कि सप्लायर ने लेट फाइल किया है 3B, सप्लायर ने GSTR 1 लेट फाइल किया है और सेक्शन 16(4) का हथियार लेके आईटीसी डिसअलाउ कर रहा है। हमने बराबर किया है, सप्लायर लेट है फिर भी आईटीसी डिसअलाउ कर रहा है। दैट शुड नॉट बी द केस। अब यहां पर गुजरात हाईकोर्ट का, सूरत टेक्सटाइल का भी ये जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसका चैलेंज किया है 16(4) का। लेट्स सी कि ये आगे क्या होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भी RK मोदी का है, इसके अंदर भी ये इशू आया है और इसमें एक बहुत अच्छा बात किया गया। मुझे पहले 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करना था, मैंने फाइल किया 4 नवंबर को। कितना दिन लेट हुआ? 4 दिन लेट हुई। अब 4 दिन मेरा अगर लेट हुआ रिटर्न, यानी मार्च का रिटर्न मुझे सितंबर के पहले फाइल करना था पिछले साल का, वो फाइल हुआ 4 नवंबर को। तो यहां पर कोर्ट ने ये दिया है वेदर देयर वाज अ विलफुल डिले, मेरा लेट फाइलिंग के पीछे कोई रीजन था क्या? अगर रीजन नहीं है तो 16(4) का हिट नहीं होगा, उसको आईटीसी दे दो। अब और एक केस मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया साहब, अब वो रिस्टोर ही नहीं कर रहा है। मैं अपील में चला गया, अपील डिसाइड हो रही है 1.5 साल के बाद। मैं थक गया उसको बोल बोल के, चलो रिस्टोर करो रिस्टोर करो। अब जाके अपील में आया कि नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि आपका नंबर रिस्टोर होना चाहिए और आपको रिटर्न फाइलिंग अलाउ होना चाहिए। वो करने के बाद में अब असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेज रहा है कि आप 16(4) में बैठ नहीं रहे हो क्योंकि सितंबर के बाद आपका आया है, ये तो बहुत पुराना आईटीसी है, हम आपको देंगे नहीं। और एक्चुअली ये हो रहा है। नाउ व्हाट इज द इशू ऑफ दैट रेसिपिएंट, वेदर ही इज हैविंग एनी मिस्टेक डन। तो ये केस में सेक्शन 16(4) नहीं लगना चाहिए। तो सेक्शन 16(4) इज अ टेक्निकल कंप्लायंस और इट्स अ प्रोसीजरल कंप्लायंस कि भाई लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो रहा है तो अलाउ करो। इफ इट इज अ लेट, यू गेट द रीजन एंड अलाउ इट। अब सप्लायर अगर लेट फाइल करता है तो उसमें तो मेरा दोष होना ही नहीं चाहिए। सेक्शन 16(4) का फिर भी वैसा लिटिगेशन से आगे आ रहे हैं। केरला हाईकोर्ट का भी यहाँ पर जजमेंट है, सेंट जोसेफ टी कंपनी का, ये भी हमारे लिए काम का जजमेंट है जो सेक्शन 16(4) के रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट मद्रास हाईकोर्ट का, ये DY बीथल एंटरप्राइजेस का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा जजमेंट है कि सप्लायर अगर रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, टैक्स नहीं पेमेंट कर रहा है, तो भी मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, जेन्युइन टैक्स पेयर हूँ मैं। और LGW का कलकत्ता हाईकोर्ट का भी जजमेंट है जो यही लाइन पे है कि मेरी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, सप्लायर अगर मिल नहीं रहा, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। अब जब हम आगे ये देखते हैं कि सेक्शन 16(4) तो शुरू से था, बट महाराष्ट्र में क्या चल रहा था? 17-18 और 18-19 में महाराष्ट्र के कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा एक इंटरनल सर्कुलर निकाला। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मिसमैच है 3B के अंदर और 2B के अंदर, वो ट्रांजैक्शन वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सामने वाले ने 1 नहीं भरा है, सामने वाले ने 3B नहीं भरा है, तो एक CA का सर्टिफिकेट ले लीजिए। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका आईटीसी है तो वही आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है कि आप CA के सर्टिफिकेट लेके लेजर्स के कॉपीज जोड़ के, भले ही वो आपके 2A में नहीं दिख रहा है, सप्लायर नहीं अगर उसको ठीक कर पा रहा है, तो भी हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो यहाँ पर ये एक ऐसा हमको एक उन्होंने स्पेस दिया कि सेक्शन 16(4), सेक्शन 16(2)(C) अगर कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसको आईटीसी के लिए हम आगे लिटिगेशन में एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हम उसको झगड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट फ्रॉम हियर। नाउ वन बिग क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, सुशील गोयल सर, हम मिलके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप सबकी भी मुझे राय चाहिए। सेक्शन 16(4) में शब्द यूज किए हैं इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट। अब मेरे पास में एक क्लाइंट आता है, उसका 18-19 का वो पूरा कैलकुलेशन देता है
और उसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसी मिलती है कि उसने इंपोर्ट्स किया था मशीनरी का और उसके ऊपर उसने आईजीएसटी खुद भरा था। अब आईजीएसटी उसने पेमेंट किया और उसका वो आईटीसी लेना भूल गया, क्योंकि वो एंट्री कस्टम ड्यूटी के अकाउंट में मर्ज हो गई थी। अकाउंटिंग करते वक्त वो आईजीएसटी भी कस्टम्स के लेजर में चला गया। जब बाद में 18-19 का कब मालूम पड़ा, ये 20-21 में मालूम पड़ा, 2 साल बाद, कि अरे ये इतना आईजीएसटी पे किया है। नाउ वेदर इट इज अ इनवॉइस, वेदर इट इज अ डेबिट नोट, ये तो मैंने इंपोर्ट्स का आईजीएसटी पे किया है, तो उस केस में मैं आज भी आईटीसी ले सकता हूं। सेक्शन 16(4) मुझे रोकेगा नहीं कि सितंबर गया, नवंबर गया, आईटीसी नहीं मिलेगा, साल खत्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीडिंग है कि सेक्शन 16(4) टॉक्स अबाउट ओनली टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट्स एंड एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट, ये शब्द उसमें नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कोई ऐसी केस है तो वी मस्ट फाइट एंड वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस, और एटलीस्ट ट्राई, क्योंकि करोड़ों रुपए का आईटीसी था, हमने तो वो केस फाइल कर दी, 3B में क्लेम कर लिया करंट ईयर में। अब आगे देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 16(4) का वो एक इंटरप्रिटेशन। अब ये रेसिपिएंट बेस है या सप्लायर बेस, इसका डिस्कशन हमने कर लिया। सप्लायर अगर लेट फाइल करेगा रिटर्न, वो नवंबर में फाइल करेगा मार्च का रिटर्न, या वो जीएसटीआर 1 पिछले साल का इस बार फाइल करेगा, तो भी मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो रेसिपिएंट बेस समझ के सेक्शन 16(4) का कंप्लायंस किया है। तो ये एक मुद्दा था। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट। ये एक ऐसा हथियार डिपार्टमेंट वाले ले लेते हैं कि साहब आईटीसी किसने लिया, आपने लिया, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, आपका है, सारा काम आप ही करो, वो सप्लायर को आप ही ढूंढो, वो सप्लायर से आप ही भरवा के लो 1 करेक्शन 2 या पैसा भरवा के लो, क्योंकि आपने आईटीसी लिया है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार जब हम केसेस लड़ते हैं, हम रेसिपिएंट को कहते हैं कि भैया सारे प्रूफ मुझे दे, कुछ कुछ वो डॉक्यूमेंट दे पाता है, कुछ नहीं दे पाता है, लेजर कन्फर्मेशंस के इश्यूज आ जाते हैं, वो सप्लायर मिल नहीं रहा है, उनके कुछ कमर्शियल इश्यूज है। तो हमको ये गाइड करना जरूरी है कि अगर वो आईटीसी ले रहा है तो सारी जवाबदारी अपने पे आ रही है। तो डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन लाइन विच आर प्रिस्क्राइब व्हेन वी आर टेकिंग द आईटीसी, क्योंकि ये एक इशू आगे आ सकता है। आवर क्लेम में बी अंडर अ पॉइंट ऑफ डिबेट। नाउ वी कम डाउन टू सेक्शन 140। मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ये केसेस अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद में सेटल होने लग गई, क्योंकि एक बार चांस भी दे दिया जो अपना फिल्को ट्रेड सेंटर का था। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 17। सेक्शन 17 ये ब्लॉक आईटीसी के बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर क्या डिबेट हो सकती है क्या नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एआरस के ऊपर ले लेंगे हम। ये कुछ एआरस के अंदर टॉपलिंग मोटर कार का प्राइवेट लिमिटेड का एआर है। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स पेएबल। तो किसी का ऑटोमोबाइल का अगर बिजनेस होगा तो डेमो कार्स के ऊपर यहाँ आया था। अब ये ब्लॉक क्यों किया था उन्होंने कि भैया पर्सनल यूज, एक्चुअली इट इज नॉट इन पर्सनल यूज, इट इज अ बिजनेस असेट, इट इज अ डेमो कार, इट इज यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका आईटीसी तो मिलना ही चाहिए था। देन वी कम डाउन टू नेक्स्ट, टाटा मोटर्स का जो ये एआर है, ITC on GST paid on canteen facility is blocked under section 17(5)(b)(1) of CGST Act and it admissible। अब ये क्या था कि जो भी एप्लीकेंट है वो एम्प्लॉय से कुछ पोर्शन लेता था कैंटीन चार्जेस के और वो कलेक्ट करके भरता था, तो वहाँ पर वो GST पे करता था, जहाँ पर नहीं करता था तो उसका ITC उसको नहीं मिलता था। एक इंटरेस्टिंग AR आगे आया था, वो हमको अगर देखना है तो यहाँ पर मुझे आगे मैं लूँगा उसको, एक बड़ा खास है सफारी रिट्रीट का 17(5) का सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी मैटर पेंडिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटलाइजेशन एंड आईटीसी। तो ये
एक ऐसा मुद्दा है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे अभी भी चल रहा है, हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, वी विल हैव टू वेट फॉर द फाइनल जजमेंट। बट व्हाट इज द टेक अवे हियर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज करेंगे तो नो आईटीसी, बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर है बिल्डिंग का तो आईटीसी मिलेगा। कई बार हमारे आरसीसी छोड़ देते हैं, बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग आईटीसी शुड बी अलाउड बिकॉज इट नॉट अ कैपिटलाइजेशन। अब नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर द असेसिंग ऑफिसर यानी जीएसटी का ऑफिसर जाके कैपिटलाइजेशन भी डिसाइड कर सकता है क्या, कि आपने इसको प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज किया, ये गलत है, ये बिल्डिंग पार्ट होना चाहिए। ये एक्साइज में हुआ है, एक्साइज में सेनवैट्स के डिसअलाउंसेस ऐसे भी आए हैं। अब जीएसटी के अंदर भी वो कुछ लिटिगेशंस आने वाले हैं, कुछ केसेस में वो डिनाई कर रहे हैं कि आपने इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाहिए था, आपने इसको ऑफिस इक्विपमेंट डाला है, फर्नीचर फिक्सचर में डाला है। एक वी वर्क का एक एआर है, वी वर्क के अंदर पार्टीशंस थे ऑफिस के, वो फर्नीचर और फिक्सचर्स बोल के कैपिटलाइज किए गए थे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसका आईटीसी मिलता है। बट असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, उसका मना किया उन्हें। फिर आगे जाके ट्रिपल एआर के अंदर वो केस वी वर्क की वापस फेवर में आ गई। तो दैट वाज वन ऑफ द डिस्कशन हियर फॉर द लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट यहां पर इशू है, दैट इज रिलेटेड टू दी गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। इसका आईटीसी नहीं मिलता। अब इसके ऊपर क्या एआर आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एआर यहां पर आया है, जो मद्रास हाईकोर्ट का एआर नहीं है, जजमेंट ही है ये। इसमें ये कहा गया कि ऑफिसर ये कहता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका, प्रोडक्शन के अंदर जो लॉस हुआ है, 100 आइटम आपने रॉ मटेरियल के खरीदे, आपने 90 ही फिनिश गुड बनाए, 10 आइटम आपके खराब हो गए, उसका आईटीसी हम नहीं देंगे। तो ये पुराना माइंडसेट था एक्साइज का उनका, जो जीएसटी में वो चला रहे थे। सो यहां पर ये जजमेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग लॉस इज नॉट कवर्ड देयर। तो लॉस मतलब वहां पर कोई स्टोलन है, कोई वहां पर डिस्ट्रॉयड है, तो ये होगा। यहां पर वैल्यू एडेशन अभी भी चालू है। अगर मेरा रॉ मटेरियल खराब हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के इसमें, तो मैं उसका फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन पे चढ़ाता हूं और वहां से मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूं, वहां पे मैं आउटवर्ड सप्लाई पे भी वो वैल्यू डालता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हम इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट सुफ्रा कोर्ट्स का भी एक इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पर जितना भी हमारे फ्री सैंपल्स है उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। बट व्हाट इज द इशू, फ्री सेल एंड फ्री सैंपल। एक चीज खरीदी तो दूसरी चीज फ्री, उसका आईटीसी मिलेगा, क्योंकि पहली चीज आपने ली है, इट्स फॉर बिजनेस एंड प्रमोशन, इट्स अ सेल्स मार्केटिंग, तो वो मिलेगा। अब फ्री सैंपल दे दिया, वो कस्टमर नहीं है फिर भी उसको दे दिया, आप पहला खरीदो मत फिर भी हम दे देंगे, तो वहां पर आईटीसी मना किया गया है। एक इशू यहां पर यह भी आता है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, जब इंश्योरेंस का क्लेम हम करते हैं तो वहां पर जो भी गुड्स लॉस खराब हुए हैं, फायर हुई है फैक्ट्री के अंदर या गोडाउन के अंदर, तो हम जब इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो हम नेट वैल्यू प्लस आईटीसी करके हम इंश्योरेंस का क्लेम लॉन्च करते हैं। आप देखना इंश्योरेंस की प्रोसेस, वहां पर वो ग्रॉस वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करता है। अगर वहां पर हमने ग्रॉस वैल्यू पे इंश्योरेंस का क्लेम लॉन्च किया है तो ये जो भी डिस्ट्रॉयड हुआ है उसका आईटीसी हमको रिवर्स करना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर 17(5) के अंदर आती है। नेक्स्ट ये बाम्बू प्लास्ट का एक है, सीएसआर का पहले आईटीसी मिलता था, अब मना कर दिया है। अब 2022 के बाद में अब सीएसआर एक्टिविटी के अंदर अगर खर्चा करेंगे तो उसका आईटीसी अभी डिनाई किया है। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एमआरएफ। यहां पर वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी क्रेडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर द पोस्ट परचेज डिस्काउंट, यानी बाद में अगर हमको डिस्काउंट मिलता है उसके अंदर मेरा कोई सेपरेटली चार्ज नहीं है आईटीसी, तो मुझे रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की यहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट आते हैं
कैपिटलाइजेशन वाला कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आईटीसी मिलता है, बट कहां पे नहीं मिलता? वो नहीं मिलता है जहां पर वो लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स है और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग एआर है जो मुझे आगे लेना है आपके साथ में। वी विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू लेटर ऑन। एरिस्टो बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, ये एआर आया ही कैसे, ये मुझे पहले प्रश्न था। क्या केस है ये? वो अपना नॉर्मल ट्रेडर था, उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स परचेस किए जो अपने सेल्स प्रमोशन में स्कीम में देता है वो, कि भाई 10 किलो माल लिया तो 5 ग्राम 2 ग्राम। अब वो असेसिंग ऑफिसर ने ऐसी ऑर्डर बनाई कि भैया तेरा बिजनेस तो ट्रेडिंग का है, तू गोल्ड परचेस कर रहा है, उसका आईटीसी मैं दूंगा नहीं। ओल्ड माइंडसेट वाले ऑफिसर थे। तो यहां पर एआर में क्लियर कट दे दिया है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसका कोई को रिलेशन नहीं है अब जीएसटी के अंदर। इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। उसने भले ही गोल्ड परचेस किया होगा पर उसका आईटीसी उसको मिलना चाहिए। एरिस्टो बुलियन का ये एक एआर था। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट सेक्शन 18(1)(c। ये सेक्शन 18(1)(d) है जहां पर हम आईटीसी को रिवर्सल करते हैं टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाईज का रेशो वगैरह लेके, और इसका पूरा वो कैलकुलेशन है। अब यहां पर एक इशू ऐसा है कि मैंने एक्सेस रिवर्सल कर दिया, मुझे 100 रुपए आईटीसी रिवर्स करना चाहिए था, मैंने 120 रुपए रिवर्सल कर दिया, तो मुझे रीक्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे सबके लिए कि देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रीक्लेमिंग ऑफ आईटीसी विच इज ऑलरेडी रिवर्स, यानी ऑलरेडी क्लेम या ऑलरेडी रिवर्स के लिए। एक्सेस अगर रिवर्स किया है तो आप रीक्लेम कभी भी कर सकते हो, बट ये इशू आगे आने वाला है क्योंकि ये सेक्शन के अंदर आगे अमेंडमेंट आई है कि रीक्लेमिंग के ऊपर भी उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। अब हम आते हैं फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन। हमने पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, नाउ वी कम डाउन टू द फ्यूचर। अब ये क्या कहानी है? मियाँ बीबी आराम से अपना अपना परिवार चला रहे थे, डिपार्टमेंट को और भी रेवेन्यू चाहिए, तो अब जवाबदारी ये डाल दी है कि अगर आपके ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपकी जवाबदारी। मियाँ बीबी राजी थे, बड़ा अच्छा चल रहा था संसार, बट अब साले के यहां कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम मजे में रह सकते हैं क्या? तो वो केस अब आ रही है क्योंकि सप्लायर ने आईटीसी लिया, ठीक से नहीं लिया, वो सप्लायर कौन है ये आपको बताया जाएगा सेक्शन 38 में, और आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो हाउ इट विल वर्क? इट विल वर्क लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर हमारी एंट्रीज आ जाती है, बाद में सब्सिक्वेंटली ये 2B के अंदर आएगी एंट्री कि आपने मई के अंदर ये आईटीसी लिया था, अब वो सप्लायर आज फरवरी के अंदर इशू कर दिया है, आप इसका रिवर्सल करो, और हमको रिवर्स करना पड़ेगा। सेक्शन 38 इज द फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन ऑफ आईटीसी। तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट बनता चला जाएगा कि आईटीसी हम आपको देते जा रहे हैं प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, और आपको ये रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। 1 अक्टूबर 22 से ये आया है कि 2B के अंदर जो भी आईटीसी आपको हम दे रहे हैं ये प्रोविजनल है, और यू कैन नॉट अवेल दिस इफ फॉलोइंग केसेस अराइजेस। अब ये बड़ा मजेदारी से इन्होंने ड्राफ्ट किया है, सारे असेसिंग ऑफिसर के काम ही अपने ऊपर डाल दिए। पहली केस क्या ली है? अगर आईटीसी लिया है हमने, वो रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है और वो सामने वाले ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब क्या? किसी से माल परचेस किया, वो रिसेंटली रजिस्टर्ड है, अब वो रिटर्न फाइल करेगा 1 महीने के बाद, तब जाके डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि ये आदमी सही है, तब हम आपको आईटीसी देंगे। तो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम व्यवहार करेंगे तो वो बताएंगे हमसे
कि आप 2 महीने इस पार्टी का आईटीसी नहीं ले पाएंगे, even though you have done everything correct, but they will give a list or they will show that person in our 2B कि इसका आईटीसी आपको हम नहीं देंगे, 2 महीने तक नहीं देंगे, क्योंकि ये न्यूली रजिस्टर्ड है। पहले तो जीएसटी में लोग नंबर नहीं ले रहे, और जिसने नंबर लिया उसका आईटीसी सामने वाले को रोक देंगे तो और नए परेशानी आने वाली है। तो वी विल हैव टू वॉच हाउ द गवर्नमेंट विल यूज दिस सेक्शन। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट, दैट इज वो जो सप्लायर है उसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ टैक्स में, एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो ये तो पहले ही हम भुगत चुके हैं, सेक्शन 16(2)(c) के अंदर सप्लायर नहीं दे रहा है तो हमको नहीं मिल रहा है, बट यहां पर उन्होंने दिया है कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, तो ये आईटीसी आपको रिवर्सल करना है। नेक्स्ट वी कम डाउन टू दी, जो ये सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में 10 लाख का टर्नओवर बताया है और 3B के अंदर 8 लाख का टर्नओवर बताया। अब 1 तो उसने 10 लाख का फाइल कर दिया, उसके बेसिस पे हमने आईटीसी ले लिया, बट 3B उसने 8 लाख का ही फाइल किया है, क्योंकि जो आउटपुट उसने बताया है जीएसटीआर 1 में वो 3B से कम है। तो एक रेशो निकलेगा कि 10 लाख जीएसटीआर 1, 3B 8 लाख, तो 80% ही आईटीसी मिलेगा। वैसा भी यहां पर 2B में आगे आएगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी इन रिस्पेक्ट टू द टैक्स पेड। तो ये फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन आ रहा है। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट, वो जो सप्लायर है उसने आईटीसी एक्सेस ले चुका है और उसका आईटीसी रिवर्स हो रहा है, उसका आउटपुट मिसमैच हो गया, तो आपका भी आईटीसी गया। मतलब ए परचेज फ्रॉम बी, बी परचेज फ्रॉम सी, इफ सी डिफॉल्ट्स देन ए इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो ये तो वैसा ही हुआ कि मैं तो मजे में था, शादी हो गई, बीवी के साथ में ठीक से चल रहा था, बट साले के यहां प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हमारे भी परिवार में प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? अब ऐसा ये चेन चलता रहेगा क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को ये आगे देखना जरूरी है। देन इसके अंदर कुछ ऐसे भी वहां पर कंडीशंस वो डाल देंगे फ्यूचर के अंदर कि आपको आईटीसी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हम प्रिस्क्राइब करेंगे, और 2B के अंदर वो एंट्री डाल देंगे और आपका आईटीसी गया। और स्पेसिफाई भी कर देंगे कुछ क्लास ऑफ पर्सन, जैसा कोई स्टील इंडस्ट्री वाला है, कोई स्क्रैप वाला है, जो नोटोरियस गुड्स के बिजनेस में है, उसका आईटीसी मिलना कि नहीं मिलना, इसका भी आगे आ जाएगा। तो ये कुछ फ्यूचर ऑफ लिटिगेशंस है। अब यहाँ पर कुछ मेजर ही मैं डिस्कस करूँगा, अदरवाइज वी विल गो अहेड एंड क्लोज द सेशन विद इन 5 minutes. Now we come down to section 41. यहाँ पर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है। यहाँ पर एक चेंज कर दिया, जो भी आईटीसी हम आपको दे रहे हैं ये प्रोविजनल बेसिस पे। तो दिस इज अ वेरी बिग चेंज। व्हेन लिटिगेशन गोज तो वो सामने वाला बोलेगा इट्स अ प्रोविजनल आईटीसी टू यू अंडर सेक्शन 41। सेक्शन 41 में और एक डाल दिया कि सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा, आप आईटीसी रिवर्स करो और इंटरेस्ट भी भरो, और जब वो टैक्स पे कर देगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट वापस नहीं मिल रहा है, तो ये एक बड़ा इसमें इशू आ रहा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तो अपने को रखने ही है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी कम डाउन टू द इम्पॉर्टेंट रूल, दैट इज सेक्शन 36(4) की लड़ाई तो खत्म हो गई अब, क्योंकि 2B के हिसाब से ही लेना है। दिस इज द पास्ट लिटिगेशन। नाउ वी कम डाउन टू सेक्शन 30 रूल 37A। ये मुझे एक लेना है एंड देन वी विल क्लोज डाउन। सेक्शन 37A ये थोड़ा फायदे का भी है और थोड़ा नुकसान का भी है। ये रूल सेक्शन 37A ये क्या कह रहा है कि जो भी सप्लायर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है, इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना है अगले साल के 30 सितंबर के पहले। अगर उसने भर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं भरा तो आपको रिवर्सल। मतलब क्या होगा कि 30 सितंबर को पिछले साल का जो आईटीसी लिया है
वहां पे सप्लायर ने कहां कहां डिफॉल्ट किया है वो हमको लिस्ट मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी। फिर रेसिपिएंट ने 30 नवंबर के पहले उसको रिवर्स करना है। तो ये जो 30 सितंबर से लेके 30 नवंबर पे जो चेंज हुआ है वो इसके लिए हुआ है। तो द सिस्टम विल शो यू कि पिछले साल में इन लोगों ने आईटीसी, आपने इसका आईटीसी लिया है और इन्होंने पैसा नहीं भरा या इन्होंने डिफॉल्ट किया। अब अगर 30 नवंबर के बाद में अगर हम रिवर्स करेंगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। 30 नवंबर के पहले कर देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो हर साल हमको देखना पड़ेगा कि पिछले साल का कितना आईटीसी हमको 37A में रिवर्स करना है। सो दिस वेर द सम फ्यू थिंग। स्क्रूटिनी पैरामीटर्स यू कैन रेफर टू द पीपीटी, कि हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आई एम मूविंग टूवर्ड द लास्ट स्लाइड, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ की स्क्रूटिनी हो रही है। GSTR 1, 3B, 3B, 2B। अब लास्ट में आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 22 से 3B के अंदर ITC ग्रॉस बेसिस पे हमको बताना है। 100 रुपया है तो 100 रुपया, फिर रिवर्सल है तो रिवर्सल, नॉन एलिजिबल है तो नॉन एलिजिबल, और नेट 80 रुपये हमको अगर मिल रहे हैं तो 80 रुपये शो करना है। तो 100 - 20 रिवर्सल और 80। तो ये करना अब जरूरी हो गया है। पहले नेट के ऊपर काम चल रहा था, अब ग्रॉस पे बताना है। फिर सेक्शन 16(2) का इशू तो चल ही रहा है। सेक्शन 16(2) AA, सप्लायर अगर डिफॉल्ट करता है तो मुझे आईटीसी मिलना ही चाहिए। लेट फाइलिंग के ऊपर भी मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। ये भी एक इशू आएगा इफ देयर इज अ डिफॉल्ट विच इज एक्सप्लेनेबल। आईटीसी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वेट करना पड़ेगा। देन डिनायल ऑफ आईटीसी रिफ्लेक्टेड इन 2B 38 का कैसा रूप आता है देखेंगे। रिक्लेम ऑफ आईटीसी का एक है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और एक लास्ट में आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर हमने एक RTI डाला था। RTI के से हमको ये मालूम पड़ा कि 17, 18, 18, 19 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 550 करोड़ रुपए का रिकवरी था। उसमें से सिर्फ 100 करोड़ की रिकवरी उन्होंने करी। तो हमने उनको ये डाला कि आपने बचे हुए 450 का क्या किया। दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। मीन्स व्हाट, हमारा आईटीसी डिसअलाउ करके वो आराम से बैठ जाते हैं। सप्लायर से रिकवरी करना नहीं करना, कोई मशीनरी हमारे को क्रॉस चेक की नहीं है, और ये RTI से हमको पता चला है। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इफ आवर आईटीसी इज डिसअलाउड। सो एट लास्ट, ऑल द बेस्ट इन प्रैक्टिस। पहले गिरीश आहूजा साहब को इनकम टैक्स में सुना, अब आपने मुझे GST में सुना। दोनों सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं, प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है। So hats off to you, hats off to your mind. You are taking both the subject together and doing the practice. We have to win in spite of all the odds. And at last, जिंदगी में सबका मंगल हो। आप सप्लाई करते रहो हैप्पीनेस का विदाउट कंसिडरेशन। कोई सामने वाला अच्छा मेरे साथ रहेगा तो ही मैं उसके साथ अच्छा रहूं, कोई मुझे स्माइल देगा तो ही मैं उसको स्माइल दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई योर हैप्पीनेस विदाउट एनी कंसिडरेशन। और आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर रहो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सबका मंगल हो। सॉरी फॉर एनी एरर्स, ओमिशंस, एंड कीप शेयरिंग द नॉलेज। कर नीति पढ़ते रहेंगे। थैंक यू। ये वीकली आर्टिकल्स है। अभी तक 490 वीकली आर्टिकल्स हो गए हैं। ये टैक्स गुरु CA क्लब इंडिया पे भी आता है और पेपर में भी पब्लिश होता है, पिछले 10 साल से आ रहा है। ये मेरा साइट भी है, वेबसाइट, उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। कर नीति। वंडरफुल प्रेजेंटेशन उमेश भाई। एंड पीपल माइट बी थिंकिंग कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ रहे हैं। ये GST तो गुड एंड सिंपल टैक्स है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जो चर्चा चल रही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स में चेंज करेंगे तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमारे GST में ये प्रोविज़न 2017 में आ गए थे। GST एक्ट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो आज आप डिस्कस कर रहे हो। जो ROC की रिक्वायरमेंट आज आई है
कि 2023-24 से करना है, जीएसटी लॉ में ये 2017-18 से करना है। कोई चेंज नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर जीएसटी। सो वी आर ahead of time. I just want to say, all of you, GST is ahead of time. Technology is used for the purpose of transformations. And thank you very much for a wonderful session. Requesting organizer for vote of thanks. उमेश जी, इन द लाइटर नोट, उमेश जी आप तो महाराष्ट्र से आए हो, आईटीसी रिवर्सल के कुछ गुण हमें बताए हो। रिवर्सल की डर से आपके फीस तो जल्दी आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऑडिटर ही बदल जाते हैं।